देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति। आज सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 319 और आज हमारे बीच में है आदरणीय केसी कौशिक साहब, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और आपके पुत्र भी राहुल कौशिक भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में है। और आपका जो विषय है वो है बचत की बावत, जानकारी, विश्वास और कंफ्यूजन, पार्ट 4। इससे पूर्व भी आप 3 पार्ट ले चुके हैं और आज हमारी बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर नवीन रतन, एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट AIFT नॉर्थ जोन है, अमृतसर से। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय जमुना शुक्ला जी हैं, जो AFTP की जनरल सेक्रेटरी हैं, बनारस से हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। अब हम आदरणीय नवीन रतन साहब से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। उसके बाद कौशिक साहब। आदरणीय नवीन रतन साहब। थैंक यू शर्मा जी। नमस्कार सबको। नमस्कार मैडम जमुना शुक्ला जी को नमस्कार, कौशिक साहब को नमस्कार, और जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको नमस्कार। To begin with, let me tell you that we have already 3 sessions on will. We have completed 3 sessions and Mr. Kaushik has delivered a elaborate lecture. Should I speak in Hindi or English? जैसा आप उसे समझें। Okay. 3 sessions have been already completed by Mr. Kaushik, who has touched every aspect of will. Probably it is the 4th one today, which he will be deliberating on the vital issue of will. Almost all the aspects have been touched by him in earlier sessions, but so far new persons have joined today. I think it is indispensable to throw some light on the issues which are related today. The first issue which crops up to my mind is that what is will? Because we have been talking about will, it is essential to know what is will, why we have been talking about will so frequently, and why this topic is a very gigantic of importance. Will is a last declaration of a testator. It is a last declaration. It means a person may execute as many as wills he wants. For example, if a Naveen Ratan wants to execute one will is a last declaration. It means I may execute 99 wills earlier, but any will before my death, last declaration, that is my will. It means testator has done that will, and it is a last declaration about his disposal of his property, which is movable or which may be immovable property, or any property which belongs to him. It means it is a declaration with regard to the disposal of the property, and will is executed after the death of a person. It means, as Mr. Kaushik has earlier said in his lecture, that a person may execute 99 wills. There is no issue. You may execute so many wills, but it is the only last will that will be come into operation after the death of the person. This is a first point. And second important issue is, it is basically a legal document. It is a legal document. Legal document, it can be written on stamp paper, or it can be on a plain paper, doesn't matter much, but it relates to the last desire of the person, and it is applicable after death, I told you. Now another aspect of the will is that it should be executed in a lawful manner. Am I audible? Yeah, bilkul sure. Now the next aspect is that will should be executed in a legal manner. When we say it should be executed in a legal manner, there are certain requirements of a valid will. What are those requirements, which have been already discussed by Mr. Kaushik times and again, but just to refresh it up, it says that a person, he who execute will, must be a major. He must be an adult one. It means he must have attained the age of majority, and the age of majority is 21 years. It means after the age of 21, any person can execute will. If it is below 21, that will not be a valid will. Second, a person, he who execute will, must be of a sound mind. Sound mind means he should not be insane. Insanity, the element of insanity should be absent. He should be sound mind. He knows what he's writing. He knows what he's doing. He knows everything about it. He is very clear, very unambiguous about his intention, which he is
which he is reflecting through that a legal document that is called will. Insanity has been defined in two terms. One is insanity, medical insanity. Another is legal insanity. I will not enter into such discussion about the insanity, but at a present it is enough to understand a person should be of a sound mind, he who executes the will, and he should execute this will with free consent. There should not be any element of coercion, undue influence, fraud, etc., etc. Now, you know why this will, the execution of will is essential, because in order to avoid any uncalled legal litigation amongst the co-partners or the persons in the favor of whose will has been executed. So will should be a clear, unambiguous, and to curb litigation, will must be executed by each and every part, by each and everybody, because it will avoid legal litigation. And in order to avoid litigation, there should be a clarity about the will, and secondly, it should be executed in a legal manner, which Mr. Kaushik will be dealing with all various legal aspects of will. And so for the statutory provisions are there, burden of proof, suspicious circumstances. Expert K.C. Kaushik will deliver a detailed lecture on it. I will not consume much of your time, and straightway we will come to this here. Mr. Kaushik is a very learned man. He is a very seasoned person. He is from Supreme Court, and he has been doing this job for the last, I think, if I am not mistaken, for the last 40 years, and he will throw a flood of light on this issue. Thank you very much. Thank you, Dr. Naveen Saab. Adarniya K.C. Kaushik Saab. Thank you, Dr. Naveen Ratan, for introducing the subject. जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं अरविंद शर्मा साहब को बधाई देना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम उन्होंने आज, इनका प्रोग्राम का जो है 319वां भाग है, ये बधाई के पात्र है। जिस टाइम कोरोना चल रहा था उस टाइम पे भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उस टाइम पे भी इन्होंने लोगों को इससे जोड़ के रखा और ये मोटिवेट करते रहे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब मैं भागने की भी कोशिश करता हूं तो ये कहते हैं नहीं साहब आपको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा टॉपिक क्या है, तो इनका एक बहुत अच्छा सुझाव है जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। इनका कहना ये है कि साहब वसीयत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अभी भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, यंग जनरेशन है, स्पेशली आफ्टर कोरोना, लोग अभी भी जो है ना अपने माइंड से इस तरह से अपने माइंड में इस तरह संतुष्ट नहीं है कि हमको विल क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं अपने इसमें लेक्चर में कुछ चीजें रिपीट करूं। उसका कारण बड़ा सिंपल है कि हमारे कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिए भी हम लोग एक बार ये बताना जरूरी समझेंगे कि एक्चुअली विल क्यों होना जरूरी है। विल एक ऐसा है जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में विल कहते हैं, हिंदी में वसीयत कहते हैं। हम वसीयत कहें चाहे विल कहें, इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो हमारी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, वो मुकदमेबाजी में उसका वो हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद ना हो। मेरा व्यक्तिगत जो 40 साल का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि लोगों के घर बर्बाद हो गए। मैं आपको कई एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूं जिनमें ये देखने में आया है कि लोगों का 40 साल से या 35 साल से पेट्रोल पंप चल रहा था, आपस में झगड़े हो गए। झगड़े होने के बाद चूंकि उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई विल नहीं थी, वो पेट्रोल पंप ही बंद पड़ा है। ऐसे ही आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिलेंगी जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, वो खंडर हो गई हैं। लेकिन आपस में जो लीगल हेयर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनमें सहनशीलता नहीं है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, उन पे आपस में कंप्रोमाइज नहीं होता है। तो अल्टीमेटली जो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, और काफी लोग इस बात से एग्री करेंगे, हमारी एज चाहे कोई भी हो, हम बुजुर्ग हों, हम यंग हों, हम मेजर हो गए हैं, तो हमको विल के बारे में सोचना चाहिए।
यदि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना चाहते हैं, हम लिटिगेशन उस प्रॉपर्टी को नहीं फंसाना चाहते हैं, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको समय रहते अपनी वसीयत लिखें। मेरा उन लोगों से स्पेशली आग्रह है जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ज्यादा हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ऐसी ये भ्रांति बिल्कुल गलत है, ऐसी ये बात बिल्कुल गलत है कि लोग ये समझते हैं कि यदि हमारे बच्चे हमको विल करने के लिए बोल रहे हैं या हम खुद विल कर रहे हैं तो हमारा अंतिम समय आ गया है। ये भ्रांतियां बिल्कुल गलत हैं। पुरानी ये परंपराएं हैं, गलत हैं कि लोग ये समझते थे कि हम बिस्तर पे हैं तो साहब हमारे सांस पूरे होने वाले हैं, डॉक्टर ने शायद हमको जवाब दे दिया होगा, इसलिए हमारे बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए बाकी लोग कह रहे हैं कि हम वसीयत कर दें। ये बिल्कुल गलत है। आई एम ऑफ द फर्म व्यू कि when we are a major, when we are a sound mind, then we should execute the will as early as possible in respect our movable and immovable property. As far as the property is concerned, we can execute the will for both movable and immovable property, including our agricultural land. But as far as the agricultural land is concerned, earlier there was an act of UB Jamidari Abolition Act. Thereafter, in 2000, UP Revenue Act 2006 has taken over this UP Jamidari Abolition Act. In that act, there is a different provision as far as the residential property is concerned. As far as the commercial properties are concerned, there is no dispute. As far as these movable properties are concerned, commercial properties concerned, or आपका other residential properties are concerned, there is no requirement for execution for registration of the will under the Registration Act. Let us be clear of one thing. There are three categories. One is movable property, other is immovable property, excluding agricultural property. Third is a residential property. ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमारी हैं, इन प्रॉपर्टी हम वसीयत कहें, विल कहें, हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमको करनी चाहिए। अब इसमें जो इशू आता है कि ये हमेशा भ्रांति रहती है कि साहब हमने यदि वसीयत करी है तो हमारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नहीं चाहिए। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि आप प्लेन पेपर पे भी आप विल कर सकते हैं। आप स्टैम्प पेपर करेंगे तो उसका एक फायदा जरूर होता है आपको कि आपने स्टैम्प पेपर, मान लीजिए आज है आपका 13 मार्च 2022, आज आपने एक स्टैम्प पेपर परचेज किया है और आज आपने उस पर अपनी वसीयत एग्जीक्यूट की है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी जो वसीयत है, ये जो आपने विल की है, ये 13 मार्च 2022 को एग्जीक्यूट है, इससे पहले एग्जीक्यूट नहीं है। उससे एक पॉजिटिव ये इफेक्ट आता है। अब ये बात आती है कि विल रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि विल आपकी चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, यदि आपकी रजिस्टर्ड विल भी है तो उससे आपको बहुत ज्यादा को फायदा होने वाला नहीं है। उसका बेसिक कारण ये है, यदि आपकी कोई रजिस्टर्ड विल है और वो विल आपकी चैलेंज होती है तो आपको उस केस में भी ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो टेस्टेटर थे वो साउंड माइंड थे। तो जब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा साउंड माइंड थे, तो वो आपकी विल, चाहे आपकी विल जो है वो आपके रजिस्टर्ड है या चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, आपको ये प्रूव ही करना पड़ेगा वो साउंड माइंड थे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बेसिक बात है विल के जो इंग्रेडिएंट्स है वो वी शुड अंडरस्टैंड द थिंग। फर्स्ट थिंग इज कि विल इज टू बी इन राइटिंग। उसमें क्या हो सकता है, आप प्लेन पेपर पे भी कर सकते हैं, आप स्टैम्प पेपर पे भी कर सकते हैं, और आप उस विल को जो है अपने हाथ से भी लिख सकते हैं। आपके आदेश के हिसाब से कोई आदमी उसको अपने हाथों से लिख सकता है और आपको वो पढ़ाएगा। आप पढ़ने के बाद उस पर साइन करिए। साइन करने के बाद यदि संभव हो तो आप ये कोशिश की जो दो विटनेसेस हैं उनमें वन शुड बी डॉक्टर, अदर कुड बी लॉयर और योर फैमिली फ्रेंड, कोई भी उसमें हो सकता है।
उसमें जरूर नहीं है। डॉक्टर्स हम क्यों प्रेफर करते हैं, या तो आप डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लें कि आप साउंड माइंड हैं और यू आर इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट विल हैपन आफ्टर योर डेथ। सो ये हमेशा आपके इंटरेस्ट में है और प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में है कि आप एक, या तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले लें, या इफ इट इज पॉसिबल आप एक विटनेस आपका डॉक्टर बना लें, दूसरा विटनेस की कोई कंपल्सन नहीं है। The person could be a lawyer, person could be a servant, person could be your wife, person could be your husband, any person in your family or otherwise. There is no, but there should be two persons. Though the person who is executing the will, the person should be a sound mind. Person should be in a position to understand what he is doing. Then person is not under influence of either coercion, fraudulent, etc. to that extent. Whenever the will is typed, you should try, or the person who is typing the will should, after finishing of the typing, he should take out the printout. और प्रिंट आउट लेने के बाद वो आपको दे, आप उसको पढ़ें, और हमेशा विल जो है ना आपकी वेन्यूकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। यदि आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं, अंग्रेजी में कर दिए, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में कर दिए, आप पंजाबी में तो पंजाबी में कर दिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो उसको आप अच्छी तरह से समझते हैं, आप विल उस भाषा में आप कर सकते हैं। उसमें कोई बार नहीं है कि आपको इंग्लिश में होना जरूरी है। उसमें देयर इज नो बार कि जो डॉक्यूमेंट विल है वो आपका लीगल सेंस में है कि वो वकील से ड्राफ्ट कराई है। आप अपनी लेमन लैंग्वेज में भी बता सकते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है। आप इंटेंशन आपकी जो है ना, जो विल की जो है, विल में बेसिकली योर इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट, कि आप अपनी प्रॉपर्टी का आपकी मृत्यु के बाद आप उस प्रॉपर्टी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिससे जो आपका हिंदू ससेशन एक्ट है 1956, उसके मातहत लोगों को, यदि आपने कोई विल नहीं करी है तो आपकी प्रॉपर्टी उस शेड्यूल के हिसाब से डिवाइड होगी, उसमें झगड़ेबाजी होंगी। और यदि आपने विल की है तो आपको हिंदू ससेशन एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि आप उसको विल आप कर सकते हैं। विल में मैंने जैसे बताया कि will is not required to be registered under the Indian Registration Act. आपको सिर्फ मैंने जो आपको कंडीशंस बताई हैं वो ध्यान में रखने वाली बात है। अब उसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि अक्सर ये कहा जाता है कि साहब जिस टाइम आप विल कर रहे थे आप साउंड माइंड नहीं थे। इसमें यहाँ तक के जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि व्यक्ति अनसाउंड माइंड था, लेकिन जिस समय उसने विल करी उस टाइम डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसने ये प्रूव किया कि वो साउंड माइंड है। तो जब उसके पर्टिकुलर पीरियड व्हेन ही इज एग्जीक्यूटिंग द विल, यदि वो साउंड माइंड है तो मान्य है, ये हमको समझ लेना चाहिए। जो बहरे हैं, गूंगे हैं, यदि वो भी अपने एक्ट और कंडक्ट से इफ दे आर इन ए पोजीशन टू इंडिकेट देयर इंटेंशन, तो वो भी विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये भ्रांति गलत है, वो नहीं कर सकते। इसमें कंडीशन जो बेसिकली है वो यही है कि आप यू शुड बी इन ए पोजीशन टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर है, अभी जैसे उन्होंने डॉक्टर नवीन रत्न ने बताया कि आप मेजर होने चाहिए, आप साउंड माइंड होने चाहिए, तो मेजर से उनका जो कानून का अभिप्राय है वो यही है कि यदि आप इस पोजीशन पे टू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब मेजर हैं, आपकी एज प्रूफ है, उसमें आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अक्सर ये भ्रांति रहती है कि जो महिलाएं हैं वो एग्जीक्यूट करने में संकुचित रहती हैं। उनको ये रहता है कि अक्सर हमने देखा होगा कि जो लेडीज हैं स्पेशली, वो उनको जो लड़कियां हैं, स्पेशली जो विवाहित लड़कियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है और होना भी चाहिए। देखिए, माँ बाप जो है उनके लिए चाहे लड़का है या लड़की है, माँ बाप के लिए सारे बराबर होते हैं। लेकिन ये हम इस फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते कि जब लड़की शादी होकर चले जाती है तो दूसरे घर चले जाती है, तो जो माँ या बाप जो है ना, जो उनके बेटे होते हैं, पोता पोती होते हैं,
उनसे शायद उनको मोह ज्यादा होता है। ये ओपन सीक्रेट, नोबडी कैन डिनाई दैट फैक्ट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने ना बेटे से संतुष्ट हैं, ना अपने पोते से संतुष्ट हैं, ना अपनी पोती से संतुष्ट हैं, वो अपनी बेटी से संतुष्ट हैं, वो अपने नाती से संतुष्ट हैं, वो उनको विल कर देते हैं। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिन केस में ये देखा गया है कि ना तो उन्होंने अपने अपने परिवार में किसी को प्रॉपर्टी दी, उनका नौकर है उनको दी। आपने देखा होगा बिरलास का केस हुआ था जिसमें उनका जो सीए था उसने सारी प्रॉपर्टी उनको दे दी थी। उनके लीगल ने उसको चैलेंज किया, अल्टीमेटली कोर्ट ने यह होल्ड किया कि विल इज वैलिड टू दैट एक्सटेंट। तो विल के लिए ना आपका खून का रिश्ता इन्वॉल्व है, ना आपकी कोई और चीज इन्वॉल्व है, आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपनी डेथ के बाद आप किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये भ्रांति रहती है कि साहब यदि विल अनरजिस्टर्ड है, whether the unregistered will could be enforceable under the law or not, ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। विल यदि आपकी अनरजिस्टर्ड भी है तो लॉ में एनफोर्स हो सकती है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे विल को प्रोबेट करना जरूरी नहीं है। जैसे यूपी है, यूपी में प्लेंटी ऑफ जजमेंट्स हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि विल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोबेट। अक्सर पूछते हैं कि साहब हमने विल कर दी और विल कर दी है तो हमको प्रोबेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मेरा हमेशा कहना ये है कि जब भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, यदि आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी के यहाँ रजिस्टर्ड है तो आप डेथ सर्टिफिकेट लेके जाइए, आप विल की ऑथेंटिक कॉपी लेके जाइए, एक एप्लीकेशन लेके जाइए और उनको कहिए कि ये दिस प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड इन माय नेम ऑन द बेसिस ऑफ दिस विल। यदि वो ये कहते हैं, आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है या नगर पालिका है, whosoever is there, यदि वो आपको कहता है कि प्रोवाइड कराना चाहिए तो आपको पूछना चाहिए साहब किस कानून के मातहत प्रोवाइड कराना चाहिए। ये यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर जगह प्रोबेट कंपलसरी है या नहीं है, लेकिन मैं यूपी की आपको बताता हूं कि यूपी में विल को प्रोबेट कराना इज नॉट नेसेसरी। आपको अपने रेलेवेंट स्टेट्स में चेक करना होगा कि आपको विल की प्रोबेट कराना जरूरी है या नहीं। यदि आपको प्रोबेट कराना जरूरी है तो देयर इज नो पॉइंट फॉर गोइंग टू द सिविल कोर्ट। यदि आपको प्रोबेट किसी स्टेट्स में यह कि प्रोबेट इज नेसेसरी, इन दैट इवेंट वी हैव टू फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर ऑफ द विल फॉर प्रोबेट। वो नॉर्मल जो लीगल टर्मिनोलॉजी में कहला जाता है उसको प्रोबेट कराने के लिए वो एप्लीकेशन नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सबमिट होती है। डिस्ट्रिक्ट जज उस पर अपना नोटिस इशू करता है और उस नोटिस के बाद जो पार्टीज उसमें ऑब्जेक्शंस फाइल करती है उसको ऑब्जेक्शन देखते हैं, और नहीं तो आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक एट लार्ज, स्पेशली टू द जिनका इफेक्टेड पार्टीज है, जिनको उन्होंने पार्टीज बनाया है बिल में, उनको नोटिस देने के बाद यदि नोटिस सर्विस होने के बाद भी नहीं आते हैं तो सफिशिएंट सर्विसिंग मान लेते हैं। कभी कभी वो कहते हैं इसको अखबार में आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कराइए। तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद आपकी एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट कोर्ट रिकॉर्ड कर लेगी, उसके बाद आपके विल को प्रोबेट कर दिया जाएगा। ये तो आपका प्रोबेट का पार्ट हुआ। पहले मैंने डील किया कि विल इज नॉट नेसेसरी टू बी रजिस्टर्ड। ऐसे केस भी हुए हैं कि जैसे आपको ध्यान होगा कि आपको विल को आपको एडवाइस कर दिया जाता है कि साहब विल जो है आप रजिस्टर्ड करा लीजिए। ऐसे केसेस जो है ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आए कि आपने जैसे 2009 में आपने विल एग्जीक्यूट की, अनफॉर्चुनेटली विद इन ए मंथ और विद इन 2 मंथ्स उनकी डेथ हो गई, जो टेस्टेड थे उनकी डेथ हो गई। अब आपको एडवाइस कर गया कि साहब इसको एग्जीक्यूट कराइए, इसको आप रजिस्टर करा लीजिए, अदरवाइज आपको इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगे। उस केस में क्या हुआ, मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूं। उस केस में जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया
तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है कि विल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल, तो उस केस में आप ये डिस्क्लोज करके जो आ रहे हैं कि साहब जो टेस्टेड है उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है एग्जीक्यूशन के विद इन 4 मंथ्स रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसमें कोई बार नहीं है। तो उस केस में आपको उसको 2 चीजें देखनी होती हैं कि बंदा साउंड माइंड था नहीं था, ये जो विल है ये सस्पिशियस तो नहीं है। उस केस में वो रजिस्टर्ड करने से पहले उसका एग्जामिन करता है। यदि आपको ये एप्लीकेशन वो रिजेक्ट करता है for the purpose of registration of the will, then you can file the appeal against that or before the appellate authority. Thereafter, this you can go to the writ jurisdiction also, as far as the registration part is concerned. But as far as the will execution is concerned, we have already discussed in earlier parts also, or in short story we have discussed today also. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, जो पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उस टाइम हमने एक इशू डिस्कस नहीं किया है, वो है एग्रीकल्चर लैंड। यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड का आप विल करना चाहते हैं तो विल रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, इसके लिए जो यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट है 1951, उसमें 2004 तक कानून में अगस्त 2004 तक ये प्रोविजन था कि विल रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं था। लेकिन अगस्त 2004 में कानून में अमेंडमेंट आ गया है जो ये कहता है कि आपको, यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो आप जो विल कराते हैं तो आपकी विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं, जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड में जो यूपी जमींदारों एबॉलिशन एक्ट जो है, जिसमें क्या नाम है ये भूमिदारी सीधारी वगैरह डील होते हैं, पक्की लैंड कैसे ट्रांसफर होती है, उसमें जो एक है धारा 169 में प्रोविजन पहले था अगस्त 2004 से पहले कि विल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इवन इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट किया, उस that amendments are incorporated in August 2004. After that amendment, the will is required to be registered with the registration authority. यदि वो रजिस्टर्ड अथॉरिटी के सामने रजिस्टर्ड नहीं है तो वो विल आपकी वॉइड है। ये पहलू हम लोग आज पहली बार डिस्कस है, पहले 3 पार्ट्स में हमने एग्रीकल्चर लैंड को डिस्कस नहीं किया था। आज मैंने स्पेशली ये सोचा कि हम लोग स्पेशली एग्रीकल्चर लैंड को भी डिस्कस कर लें, क्योंकि कुछ हमारे साथी हैं जो श्रोतागण हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में भी उनको भ्रांति होगी तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये इश्यू अराइज होता है कि उसमें जो यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट है उसमें भी एक धारा है, वो है 143 ये कहता है कि यदि लैंड जो है आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसको आपको कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करना है या रेजिडेंशियल एक्ट में कन्वर्ट करना है, तो देन यू हैव टू मूव ए प्रॉपर एप्लीकेशन बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इन दिस केस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द कंसर्न असिस्टेंट कलेक्टर। नॉर्मली आप उसको असिस्टेंट कलेक्टर कर दिए, एसडीएम कह दीजिए, यही 2 डेजिग्नेशन होते हैं। उसके सामने यू हैव टू मूव दी प्रॉपर एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे आफ्टर डूइंग द इंक्वायरी द एसडीएम विल पास द नेसेसरी ऑर्डर ऑन योर एप्लीकेशन। once the order is passed under 143, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपकी कॉमर्शियल की आपकी रिक्वेस्ट है तो कॉमर्शियल में ट्रांसफर हो जाएगी, आपकी रेजिडेंशियल की रिक्वेस्ट है तो रेजिडेंशियल में ट्रांसफर हो जाएगी। एक बार आपकी प्रॉपर्टी 143 के आदेश के हिसाब से प्रॉपर्टी आपकी रेजिडेंशियल में ट्रांसफर हो गई या आपकी कॉमर्शियल में ट्रांसफर होगी, देयर आफ्टर द यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन योर दैट पर्टिकुलर प्लॉट कहिए,
जिसको आप एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराए हैं या कॉमर्शियल में कन्वर्ट कराए। मान लीजिए आपकी 10 बीघे जमीन है, आपने 10 बीघे जमीन में से 5 बीघे जमीन जो है वो आपने तय किया इस पर मेरे को फैक्ट्री लगानी है, तो आप उस 5 बीघे का जो है ना कन्वर्जन कराएंगे 143 में। जब आप 143 में कन्वर्जन कराएंगे तो वो 5 बीघे जो जमीन है आपकी, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड से वो आपकी उसमें आपकी कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए आपकी 1 बीघा जमीन है, जस्ट एन एग्जाम्पल, और उस पे आप अपना जो है ना रेजिडेंशियल हाउस बनाना चाहते हैं, तो आप उस पे जब रेजिडेंशियल हाउस बनाएंगे तो एग्रीकल्चर लैंड को आपको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करानी चाहिए। उसके लिए एक 143 की एप्लीकेशन आपको देनी चाहिए, और एप्लीकेशन देने के बाद उस पर जब आपके वो जो असिस्टेंट कलेक्टर है, एसडीएम जो है, वो उस पर जब आदेश पारित कर देते हैं, वो आपकी पर्टिकुलर लैंड वो आपकी रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें एक बात और भी है कि 143 में भी उन्होंने 2 प्रोविजन दिए हैं। एक दिया है कि आपको जो भूमिदार है वो एक प्रॉपर एप्लीकेशन दे, दूसरी उनको सोमोटो पावर दी है। जो कंसर्न असिस्टेंट कलेक्टर हैं उनको सोमोटो पावर दी है कि वो आपको आफ्टर इंक्वायरी आपकी लैंड को, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है यदि वो कॉमर्शियल में है और या आपकी रेजिडेंशियल में है, तो सोमोटो इंक्वायरी से भी कर सकता है। उसमें दोनों ऑप्शन है, आइदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द भूमिदार और ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऐसा वर्ड यूज किया सोमोटो, तब वो कर सकते हैं। अब ये जो यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट था, ये उसके बाद यूपी में आपका कोड आया, ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006। जब यूपी कोड 2006 आया, तो ये आपका जमींदारी एबोलिशन एक्ट का जो लैंड से कनेक्टेड थे वो सबको कंपाइल करके उन्होंने एक यूपी रेवेन्यू कोड 2006 बनाया। उसमें भी धारा 107 है। वो धारा 107 ये कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी यदि कन्वर्जन नहीं हुई है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड ही है, तो आपको, और आपने उसकी विल कर दी है, तो विल आपकी तब तक मान्य नहीं है जब तक वो विल रजिस्टर्ड नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड को आपने विल आप करना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी कर दी है, तो वो विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट इफ द विल इज नॉट रजिस्टर्ड। देयर इज ए डिस्टिंक्शन। आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मींस अदर देन योर कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये जो 3 कैटेगरी हैं, इसमें विल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। थर्ड कैटेगरी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर लैंड। जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, यदि एग्रीकल्चर लैंड आपकी है और आप उसकी विल करना चाहते हैं, तो या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको भी अपने को जब तक वो अपनी विल को रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नहीं कराते हैं, तो दैट विल बी वॉइड। ये हमको याद करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पहले तीनों भागों में हमने ये इशू डिस्कस नहीं किया है। आज हम पहली बार एग्रीकल्चर लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक आपको ध्यान होगा कि जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, उसमें एक आपका ये दिसंबर 2004 में एक अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, जिस अमेंडमेंट में उन्होंने ये कहा था कि लड़की का भी राइट है, लड़के के साथ साथ जो आपको सक्सेशन एक्ट में लड़के को राइट है, लड़की को भी वही राइट है। उन राइट्स में भी उसको ट्रीट ये किया जाता है, वो भी सन है, वो डॉटर नहीं, उसको भी सन, उन्होंने वर्ड यूज किया कि सन है,
तो उसको भी आपके प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। तो आपको ये जो महिलाएं ये समझती हैं या कुछ हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि आज जो है वो बच्चों में यदि हम विल कर देंगे तो झगड़े होंगे, मैं नहीं समझता इस तरह की बात आएगी। विल को हमेशा या तो कॉन्फिडेंस में लेके आप कर सकते हैं, या आपका जो आपका विचार है, जो आपका अपना विवेक है, तभी उसमें वर्ड यूज किया साउंड माइंड। तो आप साउंड माइंड से सोचते हैं कि साहब मेरी प्रॉपर्टी का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो आप विल में उसी तरह से उसमें लिखिए जिस तरह से आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है। अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है, वो ये प्रॉब्लम आती है कि साहब लड़की की शादी हो गई, उसमें देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब लड़की की शादी हो गई, पराये घर चली गई है, अब वो उस घर की जो ना प्रॉपर्टी पे उसका हक होना चाहिए। कुछ लोग की ये मान्यता है। कुछ लोग की मान्यता है ये है कि साहब लड़की लड़का दोनों बराबर हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है दोनों को राइट्स मिलना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि साहब मेरा लड़का तो संपन्न है, मेरी लड़की जिस परिवार में वो गई है उस परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी अच्छी है, इसलिए मेरी प्रॉपर्टी ज्यादातर उनको जानी चाहिए। कुछ में रिवर्स है, कुछ में ये होता है कि लड़की वेल टू डू है, लड़के को प्रॉब्लम्स है। तो ये तो हर आदमी की इंडिविजुअल अपने विवेक पे अपने अपने सकना से डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली विल जो करना चाहते हैं वो किसके फेवर में करना चाहते हैं। आप विल को जो है ना डिवाइड भी कर सकते हैं, आपके जितने बच्चे हैं आप उनमें भी डिवाइड कर सकते हैं कि साहब ये प्रॉपर्टी है मेरी, इन प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। कई केस ऐसे आते हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग अनमेरिड सिस्टर्स हैं, माताएं हैं, वो उनको लगता है कि यदि हम विल कर देंगे तो कल को हमारी कोई देखभाल नहीं करेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो जेंट्स होते हैं, उनको ये डर रहता है कि साहब हमारी तो वाइफ की मृत्यु हो गई है, अब यदि हम अपने बेटे के नाम पे या बेटी के नाम पे या पोते के नाम पे या पोती के नाम पे या नाती के नाम पे प्रॉपर्टी कर देंगे तो ये हमारी देखभाल नहीं करेगा। तो ये एक, इसमें मैं स्पेशली ये कहना चाहूंगा, विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। विल का ये जरूरी नहीं है कि विल आपने आज एक करी है कल आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपकी जब भी आप क्या ना, मान लीजिए आपने पहले 3 विल करी हैं, अब तीनों विल में आपका स्टैंड डिफरेंट है, और अब आप दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, दूसरी तरह प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप जो चौथी विल करने जा रहे हैं उस विल में आपको ये करना चाहिए कि आप ये कहते हैं ये मेरी लास्ट विल है। मेरी आप सबको ये सलाह है कि आप जब भी विल करें आप उसमें ये स्पेसिफिक लिखें कि दिस इज माय लास्ट विल। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा रहती है। अब जैसे एक केस मेरी पर्सनल नॉलेज में है, पहले उन्होंने 3 विल एग्जीक्यूट की। 3 विल जो एग्जीक्यूट की, जो थर्ड विल थी उसमें उन्होंने लड़की को राइट दिया, जो फोर्थ विल थी उसमें लड़की को राइट नहीं था, और जब नहीं था वो एक थर्ड पार्टी थी। उस थर्ड पार्टी ने जब उसके जो है ना विल को प्रोबेट कराने कहा तो उनको पार्टी नहीं बनाया। तो ये दिस इशू वेंट अप टू द हाई कोर्ट। कोर्ट ने ये कहा कि जो फोर्थ विल है वो सस्पिशियस है। उसका कारण क्या है? पहली बात तो ये, जो थर्ड विल थी वो एडमिटेड फैक्ट है कि वो लड़की जो है वो लड़की उनकी लड़की थी, और थर्ड में उनको राइट्स दे रहे हैं। फोर्थ की विल को सस्पिशियस क्रिएट किया जा रहा है, और आप ये सस्पिशियस करके उनको पार्टी भी नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब देयर इज सम सस्पिशन ऑन द इशू। उस बेसिस पे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इसको, ये हम नहीं मानते, हम ये कहते हैं उनको भी आप राइट्स दीजिए, उनको भी सुनिए, और सुनने के बाद आप ये एग्जामिन कर दिए कि विल ये प्रॉपर, जो फोर्थ विल है प्रॉपर थी या नहीं थी। यदि प्रॉपर थी तो उस हिसाब से ऑर्डर पास कर दिए, नहीं थी तो आप उसको डिसमिस करिए। लेकिन कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन जरूर आई कि ये जो विल है ये लुक्स टू बी सस्पिशियस टू दैट एक्सटेंट। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है एक ये आती है कि जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट है,
अक्सर उसमें जो है एग्रीकल्चर लैंड में प्रॉब्लम ज्यादा आती है, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर पार्ट ज्यादा आज डील कर रहा हूं कि लोग जो है ना, जो खसरा खतौनी है उसमें इलीगली नाम दर्ज करा लेते हैं। मैं इलीगली वर्ड यूज इसलिए कर रहता हूं कि विल ही नहीं है, फोर्स विल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें कोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू ये है कि खाली खाली रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन से किसी को राइट नहीं मिलता है। यदि म्यूटेशन से राइट नहीं मिलता है तो ये लेटेस्ट अभी एक जजमेंट भी आया है 2021 का है, सितंबर 2021 का, जिसमें ये मध्य प्रदेश का केस था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि साहब जो पुराना जो लॉ है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उसी को इसमें रिटेट किया है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री हो गई थी। जब एंट्री हो गई थी तो एंट्री होने के बाद उन्होंने राइट क्लेम किया। जो विल के जो जब विल को एग्जामिन करने के बाद सस्पिशियस क्रिएट हुआ। जब वो सस्पिशियस क्रिएट हुआ दैट मैटर फाइनली केम अप टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुराने अपने जो पुराना जजमेंट से उनको रिटेट करते हुए ये कहा कि यदि आपका 20 साल से 30 साल से भी आपका म्यूटेशन हुआ है और आपके वो म्यूटेशन की एंट्री से आपको लीगल राइट नहीं मिलता है। इसलिए यदि विल का कोई सस्पिशियस है तो विल शुड बी एग्जामिन्ड बाय द सिविल कोर्ट। अब विल के बारे में एक बात और आती है कि जैसे मैंने ये अभी इसमें जेडी एक्ट के बारे में बताया आपको कि जब आपका 143 में आपकी जो लैंड है वो रेजिडेंशियल डिक्लेयर हो जाती है या कॉमर्शियल डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद आपका जेडी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जो यूपी जेडी एक्ट था उसको मैंने बताया कि वो रिपील होने के बाद 2006 में वो जो एक्ट बन गया है वो बन गया है आपका उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। तो ये क्या दोनों में, इसमें सेक्शन 107 है, उसमें 101 से सेक्शन धारा 143 है, यहाँ धारा 107 है। दोनों में ये कहते हैं कि जब आपकी एग्रीकल्चर लैंड का कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर नहीं रही है, आपका जो ऑर्डर पास हुआ है 143 का, चाहे पहले कानून में पास हुआ या आपका यह यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में धारा 107 के अंतर्गत पास हुआ, उसके बाद आपकी योर प्रॉपर्टी शैल बी गवर्न बाय द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ मीन्स कि यदि आपकी विल एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो आपकी डील होगी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से। यदि आपने विल एग्जीक्यूट कर रखी है तो आपकी जो है ना, जो विल है, विल के बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। तो इसलिए ये भ्रांति भी हमको निकाल देनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर लैंड है, यदि उस पर आपने अपना मकान बना रखा है या आपने उसमें फैक्ट्री लगा रखी है या आप उसमें दुकान चला रहे हैं, तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं कराया है तो जो आपकी इस तरह की एग्रीकल्चर लैंड है उसका आप उसका जो है ना, जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का जो धारा 107 है उसके माते आप जो एसडीएम कंसर्न है उसके एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे इंक्वायरी होने के बाद आपकी वो जो जंक ऑफ लैंड है जिसपे आपकी रेजिडेंस बना हुआ है या इन द केस ऑफ फार्म हाउस भी बना हुआ है तो या आपकी उस पे दुकानें बनी हुई हैं या आपकी उस पे जो है ना फैक्ट्री लगी हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इस तरह की जितनी भी आपकी लैंड हैं उनको आपको कन्वर्ट करा लेना चाहिए। अदरवाइज यदि वो भी प्रॉपर्टी आपने उसकी विल करी है और ये डिस्प्यूट अराइज होता है कि आपकी विल तो अनरजिस्टर्ड थी, वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर है, तो आपको ये ऑब्जेक्शन आएगा कि आपकी योर विल वाज नॉट रजिस्टर्ड। सो टू दैट एक्सटेंट यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो आपकी प्रॉपर्टी
यदि वो उस तरह की उसके वो रजिस्टर्ड है एज एग्रीकल्चर लैंड और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आपकी जो विल है वो वॉइड मानी जाएगी। वॉइड अब इनिशियो, वर्ड यूजर्स ना, वॉइड अब इनिशियो, उसके बेसिस पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मानना है। और मैं बार बार एक बार हर एक को बताता आता हूं कि ये भ्रांति है, और अक्सर हम लोग को जो जवाब देते हैं, हमारे को जवाब देते हैं, ये हर दिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि साहब, एक केस हमारे पास आया है जिसमें उन्होंने हम जो क्वेश्चन इसके हम जवाब पूछा है कि साहब उनके फादर इन लॉ थे, उनके फादर इन लॉ के नाम में उनकी सिस्टर ने प्रॉपर्टी की विल करी, वो विल रजिस्टर्ड नहीं थी। अब अनफॉर्चुनेटली उनके फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई और उनके फादर इन लॉ की सिस्टर की भी डेथ हो गई। जो विल थी उसमें लिखा था कि अब ये प्रॉपर्टी उनके, तब तक उनकी वो प्रॉपर्टी उनके फादर इन लॉ के नाम रहेगी, उसके बाद वो उनके लीगल ईयर्स में चली जाएगी। अब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब विल मेरी अनरजिस्टर्ड है, मैं इसको रजिस्टर्ड कराऊं या नहीं कराऊं। तो हमने उनको यही कहा कि आपको बार बार हम ये बताते हैं, विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, विल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एट ऑल। आपको सिर्फ यही दो ही चीजें प्रूव करनी होती हैं कि जो टेस्टेटर है उन्होंने विल को जो साउंड माइंड से की, फ्री विल से की, कोहर्सन से नहीं की, अंडर इन्फ्लुएंस से नहीं की, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट थे। यही कंडीशंस आपको देखने वाली हैं। और बार बार मेरा ये कहना है कि विल में अक्सर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि दो विटनेसेस लोग नहीं कराते हैं। दो विटनेसेस आप नहीं कराएंगे तो विल आपकी मान्य नहीं होगी। और मैं बार बार ये कहता हूं, हर भाग में मैं ये कहता आता हूं, ये प्रिकॉशन सबको कह देना चाहता हूं, जब भी आप विल एग्जीक्यूट करें, आप अपनी जो भाषा है उसमें एग्जीक्यूट करें। आप हाथ से लिख रहे हैं तो सच्ची को बात नहीं है। आप किसी से लिखा रहे हैं तो उसके बाद लिखाने के बाद आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसमें ये आना चाहिए कि मैंने इसको पढ़ के तब हस्ताक्षर किए हैं। और आपके हस्ताक्षर के बाद आपके दोनों विटनेसेस साइन करें। दोनों विटनेसेस ये कहें कि साहब इन्होंने मेरे सामने पढ़ी और मेरे सामने पढ़ने के, हमारे सामने पढ़ी और हमारे सामने पढ़ने के बाद उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। यदि आपका कंप्यूटर का जमाना है, यदि आप अपनी विल को कंप्यूटर पर टाइप कराना चाहते हैं, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है आपकी इंस्ट्रक्शंस ले ले, आपकी इंस्ट्रक्शन लेने के बाद उसको टाइप कर ले, और टाइप करने के बाद उसको प्रिंट निकाल के आपकी लैंग्वेज में आपको दे दे। और यदि आप ऐसे हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत अभी भी हमारे गांवों में आप जाएंगे या शहरों में ऐसी बातें आ सकती हैं, कोई हमारे बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो अंगूठा लगाते हैं, वो उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, उसमें जेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। या उनको ऐसा होता है कि इतनी एज हो गई है कि उनको हस्ताक्षर करने में हाथ कांपते हैं, वो अंगूठा लगा सकते हैं, अंगूठा भी लगा सकते हैं, साथ में आपका जो है ना हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। तो उनका अंगूठा भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जो विटनेसेस उस टाइम कर रहे हैं। और लेकिन अब उस केस में समस्या ये आती है कि जब वो पढ़ नहीं सकते तो उसको डॉक्यूमेंट्स को ये कैसे माना जाए कि उन्हीं की विल से वो लिखा गया है। ऐसे केस में मेरी एडवाइस है कि उनको सरल भाषा में, जो भाषा वो समझते हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। उनको पढ़वाने के बाद उनका अंगूठा लगाना चाहिए। जो अंगूठा लगा रहा है उसको उनके अंगूठे को तस्दीक करना चाहिए, तभी उसको जो है ना, और तभी उसको विटनेस करना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। और मैं, टू कंक्लूड विद द लेक्चर, I would summarize the issue. As far as the will is concerned, let me summarize to the issue. We have dealt in earlier three parts: immutable property, movable property, that includes residential and commercial both. In these three cases, will is not required to be registered. Third part is agricultural land. As far as the agricultural land is concerned, यदि आपने विल जो है, कुछ केस पुराने ऐसे भी हो सकते हैं जो अगस्त 2004 के पहले के हैं, यदि अगस्त 2004 के पहले की आपकी विल है तो वो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। लेकिन
जो अगस्त 2004 के बाद के हैं और एग्रीकल्चर लैंड है, उनकी यदि विल आपको करनी है तो आपको विल को रजिस्ट्रार कंसर्न क्या रजिस्टर कराना अनिवार्य है। यदि आप उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं तो वो आपकी जो विल है दैट विल वुड बी एट ab initio void। और एक इंपॉर्टेंट बात और है जो सभी के हित में है, जब भी आप विल करें आप कोशिश करिए उस पर अपना फोटो भी लगा दें, क्योंकि लेटेस्ट क्या है कि कंफ्यूजन क्या होता है कि यदि फोटो नहीं है तो थिंग्स कुड बी प्लेड इन सो मेनी वेज टू दैट एक्सटेंट। तो मेरा मानना यह है कि विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट से मैं हर एक से आग्रह करूंगा, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे यंग बच्चे हैं। आफ्टर कोरोना वी ऑल शुड बिकम वॉइस as and when opportunity arise, we should try to execute our will। और will ये भी हो सकता है हस्बैंड है वाइफ के नाम में करें, वाइफ है हस्बैंड के नाम में करें, और उसके बाद में वो दोनों विल एक साथ करी जा सकती हैं। ये तो किसी का नहीं पता कब किसी मृत्यु होगी। उसके बाद आप उस विल को आप चाहे बाद में चेंज कर सकते हैं। उस विल में आप ये भी कर सकते हैं कि ये साहब उनकी डेथ के बाद वो विल को आगे प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। ये मेरा विचार है। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लेट मी कंक्लूड my this speech on the issue. I am always available to my friends with that extent. Over to Arvind ji or Jamna ji, whosoever is there in that way. कौशिक जी, सबसे पहले तो मेरा ही बहुत अच्छा लगा मुझे नई जानकारी जो मिली है अबाउट द एग्रीकल्चरल लैंड। And you mentioned that before August 2004 it could be unregistered also, but after that it is compulsory to get it registered if it is the case of agricultural land. So is it so because of this 2000 girls share has announced, मतलब वो एक्ट आ गया, इसकी वजह से ऐसा कुछ है या कुछ और कहानी, कुछ इसके पीछे कहानी है कुछ? नहीं, देखिए जमुना जी ने जो क्वेश्चन किया है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन द इशू अगेन ऑन द इशू। जो यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1951 था, उसका एक सेक्शन 169 है, उसमें अमेंडमेंट आया था अगस्त 2004 में। यूपी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है। उससे पहले प्रॉपर्टी आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो आपकी यदि अनरजिस्टर्ड विल भी है तो वो भी मान्य थी। लेकिन जब उसमें अमेंडमेंट कर दिया उन्होंने अगस्त 2004 में अमेंडमेंट आ गया। उस अमेंडमेंट के बाद आपकी जो विल है, विल हैज टू बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज दैट विल बी रिटर्न एज एट ab initio void। और उसी को उन्होंने रिकन्फर्म किया है। जो ये आपका रिपील हुआ है यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1951 जो है, उसको इन्होंने ये लाया है, उसकी जगह उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, उसकी भी धारा 107 में बड़ा क्लियर कट कहा है, वही प्रोविजन को यहाँ भी इन्होंने लाए हैं कि यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और आपकी विल अनरजिस्टर्ड है तो एट ab initio void है। मैडम लॉ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। मतलब दिस लॉ ही हैज नथिंग टू डू विद दिस गर्ल्स राइट्स एक्ट? नहीं, it has nothing to do with, okay, it is UP land revenue act, sir, but this is जो आपने is it only applicable in UP or whole India? नहीं, राइट नहीं, वो तो ये जो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है ना। एग्रीकल्चर अपने यूपी वालों को ध्यान देना है जी। हाँ, बाकी लोगों का यदि उनका किसी का तो उनका पढ़ के उनका भी हम लोग ज्ञान करने की कोशिश, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जी। जो आप लेडीज का बता रहे थे, उसमें एक इम्पोर्टेंट है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम लोग विल पे कर रहे थे। उसमें जहां उन्होंने लड़की को राइट दिया है, वहां उन्होंने एक प्रोविजन और ऐड किया है। उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये प्रोविजन ऐड किया है कि यदि किसी के फादर की या ग्रैंडफादर पे कोई डेथ है, वो दिसंबर 2004 से पहले का यदि है तो वो तो रिकवर कर सकते हैं बाकी लोगों से। लेकिन जो जब ये अमेंडमेंट आ गया है 20 दिसंबर 2004 के बाद, कि वो जो डेट है वो आपके बच्चों से रिकवर नहीं किया जा सकता। ओके, ये भी अमेंडमेंट आया उस टाइम। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन है मेरा
एग्रीकल्चर लैंड में जी एक अगर वारिसनामे के बेस पे खतौनी में चेंज कर देते हैं जी और फर्ज किया आपका एक ही वारिस है, तो विल की जरूरत नहीं होनी, तो विल तो क्वेश्चन में आती नहीं है फिर। देखिए हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है कि आपकी प्रॉपर्टी को जो भूमिदारी राइट्स हैं, आपका यूपी, अब जो कोड एप्लीकेबल है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006, उसमें यदि आप फॉल करते हैं कि आप सिर्फ एक ही क्या नाम है उनके लीगल हेयर हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी उस हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगी, वो इशू नहीं है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, यदि आपने विल एग्जीक्यूट की है और विल आपकी अनरजिस्टर्ड है, तो उस विल के बेसिस पे आप खसरा खतौनी में यदि एंट्री कराते हैं तो वो वॉइड होगी। ठीक है, विल के बेस पे अगर कराओ तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तब बेस पे। एग्जैक्टली यूपी में और अभी फिलहाल वारिसनामे तो के बेस यूपी पे का अगर है। खतौनी चेंज हो जाती है तो जरूरत जी। नहीं है फिर। अगर वारिसनामे के बेस के ऊपर खतौनी में चेंज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं कुछ वो नहीं। तो आप लीगल हेयर से, उसमें तो आपका राइट हमेशा ही है। हाँ जी, ठीक, ओके। Until and unless somebody else is claiming the rights in the property. ओके, राइट, थैंक यू जी ये कौशिक साहब, एक चीज पूछना था आपसे। जी जैसे कि अभी आपने कहा कि 2004 के बाद में वो विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जी जिसमें कि लीगल है। सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, उसके ABC 3 सन है, और उसने डी को कर दिया बिल और रजिस्टर्ड कर दिया, तो क्या दादा-लाई प्रॉपर्टी में कहीं उसके राइट का वो नहीं हो जाएगा? कि अगर उसने डी को कर दिया, ABC को कोई राइट नहीं मिला, उसने रजिस्टर्ड भी कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा फिर? मतलब कायदे में तो दादा-लाई प्रॉपर्टी है, सेल्फ अक्वायर्ड तो है नहीं वो। नहीं, हम सेल्फ एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, दादा-लाई की बात कर रहे हम तो हैं। दादा-लाई की बात कर रहे हैं ना। कोई प्रॉपर्टी दादा-लाई आ रही है सपोज, जी और उस दादा-लाई प्रॉपर्टी के अंदर आप बता रहे हैं कि 2004 के बाद में उसके 3 सन है ABC। नहीं, मैंने दादा-लाई का जिक्र नहीं किया। लेट मी क्लियर ऑन द इशू। वही मैंने जो आपको कहा है कि यदि को प्रॉपर्टी आपके नाम में है और आपकी वो एग्रीकल्चर लैंड है, और एग्रीकल्चर लैंड को आप बाय वे ऑफ विल ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपर्टी जो है आपकी विल के बेसिस पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो विल वॉइड होगी यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है। जहां तक दादा-लाई का सवाल है, दादा-लाई में भी डाइसी इशू है। अगले टॉपिक में सिर्फ हम दादा-लाई को ही डिस्कस करेंगे। मतलब हम ये मान लें कि वो हम जो बात कर रहे हैं वो सेल्फ अक्वायर्ड की कर रहे हैं, ना कि दादा-लाई प्रॉपर्टी। आज भी क्योंकि वो सब भ्रांति आती है। दूसरा पॉइंट एक और था कि कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि हम लोग जो रजिस्टर्ड कराते हैं बिल, उसमें किसी प्रकार की कोई स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है या कोई चार्जिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ऐसे चार्जिंग तो नहीं है, कोई कोर्ट फीस तो नहीं है इसके अंदर। जी देखिए जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, रजिस्ट्रेशन आपका होता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मातहत। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मातहत जब आप जाते हैं तो उनकी एक फीस प्रेस्क्राइब है, वो फीस आपको उनके यहाँ जमा करनी होती है। वो फीस जमा करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है। वो तो आपकी चाहे विल हो, चाहे आपका सेल एग्रीमेंट हो, चाहे आपकी कोई किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स आप उनके पास लेके जाते हैं, उनके चार्जेस हैं जो सरकार ने निश्चित करके वो आपको देने होते हैं। अब आप कहेंगे साहब उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है कि वहां पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस तो सभी को देने पड़ते हैं। नहीं सर, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन एक और था, जैसे कि एक तो विल अगर हम सिंपल पेपर पे लिखते हैं जी, वो भी उतनी वैल्यू है, और रजिस्टर्ड कराते हैं वो भी उतनी वैल्यू है, तो कहीं मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी ये कहा था, मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि विल आपकी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसके लीगल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी विल रजिस्टर्ड भी है और उसके बारे में कोई पक्ष ये चैलेंज करता है कि साहब ये साउंड माइंड पे नहीं थे उस टाइम, तो आप पे बर्डन तब भी उतना ही है एज ए प्रपोनेंट जितना आप पे अनरजिस्टर्ड विल पे है। यदि वो डॉक्यूमेंट वहां पे जाता है, सिविल कोर्ट जाता है टाइटल के लिए, वो चैलेंज करता है साहब ये विल फोर्स है, इन्होंने फोर्स सिग्नेचर किए थे या ये अनसाउंड माइंड थे, तो वो आपकी जो विल है वो चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, आपको दोनों केस में बर्डन आपको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं कौशल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ अपने हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट हम कराते हैं रजिस्टर्ड,
जी उसमें रेंट एग्रीमेंट में रेंट के हिसाब से कोई 4% का कोई कोर्ट फीस देनी पड़ती है। तो क्या यहाँ जी। रजिस्ट्रेशन में भी कोई ऐसी फीस देनी पड़ेगी? हमारे पास यहाँ ये है। नहीं, यहाँ परसेंटेज नहीं है, हाँ बस बस यस। यहाँ परसेंटेज नहीं है, क्योंकि हाँ। आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी क्वांटिफाई हाँ। नहीं हो रही है। जी हाँ जी हाँ, कुछ लोगों को ये जो भ्रांति है ना। आपकी जो सेल डीड हो रही है या एग्रीमेंट तो सेल हो रहा है, तो वहां आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही है कि इसमें ये कंसिडरेशन है। जी जी जी। यहाँ उनको मेरा एक छोटा सा रजिस्ट्रार को सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लेने दो, 100-200 रुपए, 500 जो भी होता है। जी ठीक है, बिल्कुल क्लियर, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? एक छोटा हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। एक छोटा सा डाउट है, हाँ एक छोटा सा जी डाउट है कि जी नोएडा का कोई बिल्डर एक आदमी को अलॉटमेंट लेटर दे देता है, पोजीशन लेटर दे देता है, और वो उसको अपना पोजीशन देता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या ऐसे प्रॉपर्टी का विल हो सकता है? देखिए, जिस डॉक्यूमेंट का आपका ही टाइटल नहीं है, तो आप उसको आगे कैसे ट्रांसफर करेंगे, हमको ये समझाइए। खाली अलॉटमेंट के लेटर के बेसिस पे आपका टाइटल में, आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। लेट अस बी क्लियर ऑन दैट इशू। हाँ, उसमें एक बात जरूर है कि यदि आपका आज अलॉटमेंट हो गया है, तो आप अलॉटमेंट के बेसिस पे ही आप विल कर सकते हैं। कल को खुदा ना खासा जो व्यक्ति अलॉटमेंट के बेसिस पे वो कर रहा है, तो उसके बेसिस पे वो राइट क्लेम कर सकता है। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में आपका टाइटल जब ही आता है जब आपका लीज, सब लीज, व्हाटएवर इज देयर, वो आपके फेवर में एग्जीक्यूट हो जाती है। उससे पहले आपका लीगल टाइटल नहीं होता है। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं उसको दोबारा आपके सवाल का प्रश्न जवाब दे देता हूं। आपका सवाल यह है कि किसी बिल्डर से या आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपको अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया है, और उस अलॉटमेंट लेटर के पोजीशन भी दे दिया, पोजीशन भी दे दिया है, पोजीशन भी दे दिया। आप उन दोनों के बेसिस पे विल कर सकते हैं, बार कहीं नहीं है। लेकिन कई सालों से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। नहीं, रजिस्ट्रेशन का उससे कोई झगड़ा नहीं है। विल, यदि विल आपकी एग्जीक्यूट है, उसको वो मान्य है सबको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि परफेक्ट टाइटल की आप बात करते हैं, जब तक सब लीज या लीज आपके फेवर में नहीं होती है, तब तक टाइटल कंप्लीट नहीं होता है आपका। Am I clear to you? हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कौशिक जी, एक क्वेश्चन ये है कि आप जिक्र कर रहे थे, आप भी और लॉ भी यही कहता है कि जो विल लिखता आदमी, तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए। Impliedly it means he should not be unsound mind person. जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अनसाउंड माइंड पर्सन कभी विल कर ही नहीं सकता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो किसी वक्त भी किसी स्टेज पे भी साउंड माइंड हो सकता। अनसाउंड माइंड कैन बी अ साउंड माइंड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इफ इट डज execute that will at that particular time when he is sound, though he is of an unsound mind, would it be a valid will in the eyes of law? 100% वैलिड है, उसमें लॉ है। yes. उसमें सुप्रीम कोर्ट ये स्पेसिफिक कहता है कि यदि को पर्सन अनसाउंड माइंड है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम when he has executing that time if the environment shows, if the medical report shows कि he was sound mind, he was in a position to understand whether what he is doing in that way on the basis of the medical report, then that will is valid to that extent. Two things should be established at that time: that he was aware of what he is doing, and he knows that what he is doing is not contrary to the provisions of the law. Only exactly. और यही रीजन है डॉक्टर नवीन रतन, I am always requesting to each and every person who is going to execute a will, either you should have the medical certificate with you at the time of execution of the will, or if it is possible, one of the witness should be a medical doctor, qualified doctor. Sir, is there any legal remedy that a will is executed in a legal manner, and sometimes forged litigation is put into the motion by the other persons in order to delay the matters? So, do you find some concrete remedy which could give effect, which could give immediate effect?
because it takes years together to settle the issue that the will was forged, one actually forged or not disputed. It was disputed for such a pretty long period. Could we go to the court and say that the matter should be disposed of expeditiously? No, Doctor, as far as the declaration of the will as a probate is concerned, normally courts are not taking much time. Yes, No. summary proceedings. Okay. Summary proceedings. Basically, summary proceedings. Correct. These type matters are not treated as a regular suit. These are the summary proceedings as JSCC we do in that way. Yes. Thank you, sir. Thank you so much. कौशिक साहब, अभी तो एक क्वेरी आई थी जिसमें कि कोई एग्रीकल्चर लैंड डेथ के बाद वारिसान के थ्रू अगर वो आ रही है मतलब लैंड में, तो क्या वारिसान लेटर तो सिर्फ 5000 तक की कम उससे है, तो हाउ कैन पॉसिबल कि वारिसान से वो उसको टाइटल आ जाएगा? सॉरी, मैं सवाल समझ नहीं पाया सर। एक्चुअली अभी एक क्वेरी आई थी, उस क्वेरी में ये था कि कोई एक्स है उसकी एक्सपायर हो जाता है, उसके नाम एग्रीकल्चर लैंड है फॉर एग्जांपल, और उसने कोई विल नहीं करी है, तो क्या वारिसान लेटर से वो प्रॉपर्टी उससे आ सकती है? नहीं, लेटर से कैसे आएगी? लेटर से नहीं आएगी ना, क्योंकि वारिसान लेटर तो ओनली फॉर 5000 ना। यस नहीं, वो जो वारिसान लेटर है, वो उस लेटर को यदि वो ये कहते हैं ये विल है उनकी लास्ट, तब तो ठीक है। नहीं, वो अपने फैक्ट्स नहीं बता पाए। अभी एक क्वेरी थी, उनका कहना यह है कि वो एग्रीकल्चर लैंड उसकी कोई विल नहीं है, वारिसान लेटर बना दी, जैसे हम लोग इनकम टैक्स में बनाते हैं, वारिसान लेटर लेते हैं, उसमें मेंशन होता है कि दैट इज वैलिड फॉर ओनली 5000 रुपीज अमाउंट्स। तो हाउ कैन पॉसिबल कि वो वारिसान से एग्रीकल्चर लैंड उसके नाम में आ जाए? नहीं, वारिसान उसमें एग्रीकल्चर जो यूपी जेडे एक्ट है या आज की डेट में यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, उसमें इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है। उसमें दो ही तरह से आपका उसमें जो टाइटल ट्रांसफर होगा, दो ही तरह से ट्रांसफर होगा, आइदर बाय वे ऑफ विल, रजिस्टर्ड विल, या और वारिसान। हाँ, इन टर्म्स ऑफ वारिसान, इन टर्म्स ऑफ द यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006। मतलब आपको कहना है कि वारिसान से लेटर से आ सकती है? नहीं, वारिसान नहीं, मेरे ख्याल है लीगल हेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, तो दो तरीके हुए ना, एक तरीका तो होगा कि या तो बिल हो उसके नाम, हाँ, या फिर अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट आनी चाहिए ना। नहीं, एग्रीकल्चर लैंड में प्रोविजन दिया है ना वो। अच्छा, दिया हुआ है। ओके, उसमें प्रोविजन दिया है कि प्रॉपर्टी कैसे। ठीक है। उसमें आप सेक्शन 108 देखेंगे जी, जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, जी, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। वो दोनों के केस में, मेल और फीमेल दोनों के। ओके, ठीक है। मैंने आज का टॉपिक अरविंद जी ये एग्रीकल्चर से कोलेट इसीलिए किया कि क्या थी, लोग ये समझते थे कि एग्रीकल्चर में वही अप्लाई होता है जो आपकी कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल पे अप्लाई होता है। जी। जबकि और किसी कोई क्वेरी हो तो वो नहीं, आदरणीय जमुना शुक्ला साहब से जो हमारी सेक्रेटरी जनरल है एफटीपी की, उनसे निवेदन करते हैं कि फिर 2 शब्द धन्यवाद के दीजिएगा। I think queries have been solved. Thank you so much, Arvind sir. First of all, it was today so much technical that I think Dr. Ratan sir, it should have been AIFTP North Zone should have been made part of this organizing team, so that such a wonderful insights we got today from our learned speaker Shri Kaushik ji. So I am very much thankful to Dr. Naveen Ratan ji for giving the whole summary. In fact, in starting, he gave a very useful summary of this act regarding this wills and allied laws also. He explained very well. And what to say about our today's speaker? Really, it was so wonderful, sir. You mentioned that I know more than you. I know nothing. Means when I learned today this full lecture, I came to know so many new things, and I'm really thankful to you that you gave me a means food for thought, to a point to read it as in whole. Ki so many things are still left to know. Law is such a big and wide area, and I'm very much thankful to our organizer Arvind Sharma ji that he has chosen such beautiful topics to discuss with. Actually, it is highly technical topic which we need to even continue in our technical sessions. So, and my heartfelt thank to all the
audience, participants who gave a very real problem, practical problem questions they raised, that will of course solve our many practical problems. So it was really a very interactive session. For that I thank to all. Thanks again for providing me this opportunity to all and one. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद आदरणीय जमुना शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नवीन रतन साहब, आपने समय निकाला हमको दिया, और हम धन्यवाद आदरणीय केसी कौशिक साहब, धन्यवाद समय निकाल कर हमको दिया। और जैसा कि हम एपीपी नॉर्थ जोन में लेके करना चाहिए था, बहुत अच्छा था सर कौशिक सर, इट वाज वंडरफुल। जैसा कि हम अपना एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आज का विचार है, हथेली तब भी छोटी थी, हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थी, पहले खुशियां बटोरने में चीजें छूट जाती थी, अब चीजें बटोरने में खुशियां छूट जाती हैं। Beautiful, beautiful, very nice, very nice. आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।